25 years, on the 22nd of January 2024, the Grand Ram Temple, newly built, was inaugurated. सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। It was an occasion to remember, and what sets this Deepotsav in Ayodhya apart is the fact that it's the first after Ram Lalla is Virajman at his birthplace in Ayodhya. संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं।
The Deepotsav is a 5-day festival commemorating the return of Lord Ram to Ayodhya after a 14-year exile. This would be the 8th edition of the Deepotsav. At the Lata Mangeshkar Chowk of Ayodhya, and the festivities of Deepotsav have begun in Ayodhya. As you can see in the visuals, the final touch is being given to the Lata Mangeshkar Chowk, and not just the Lata Mangeshkar Chowk, but the entire Ayodhya is being decked up for the final festivities of Deepotsav, where the record of 25 lakh diyas will be set. The Uttar Pradesh government is aiming to create a world record of lighting up 25 lakh diyas on the occasion of Deepotsav, and it's a special Diwali for the people of Ayodhya, as Lord Ram has returned to his place after awaiting for 500 years. And as you can see in the visuals, how beautifully this city has been decked up. Tight security is in place in Ayodhya. Multiple layers of barricades have been placed all the way leading towards Ram Ki Paidi, and these are the Surya Stambh that welcomes the people that are coming to Ayodhya. So you can see how beautifully the entire city has been decked up. In fact, there are cutouts of Lord Ram being placed on all the city entrances and on the poles of the city. And this is the area where the Uttar Pradesh government is going to create a world record of lighting up of 25 lakh diyas. In fact, they have placed around 28 lakh diyas, and the aim is to light up 25 lakh diyas on this grand Deepotsav. This time around, all eyes are on 2 attempts at creating a world record of the Deepotsav. A Sarayu Aarti involving as many as 1100 people, and secondly, 30,000 volunteers will be participating in lighting as many as 25 lakh diyas across 55 ghats in the holy town. In 2024, lamps were lit across 51 ghats. The Guinness Book of World Records is sending 30 members to take stock of the record that will be set. The mega and the grand Deepotsav has now started. Let me quickly take you through the pictures that are now coming in. We are getting you those pictures from Ram Ki Paidi on the banks of the Saryu River, and there you can see all of these volunteers who are now hard at work getting you these pictures of sticks where candles have now been put on them, and through those candles they are lighting those diyas. And in a short while from now, a world record would be created. 28 lakh diyas, that is said to be the estimated number. That world record, this Deepotsav, even more special right after this Deepavali that will be celebrated tomorrow on the grand homecoming of Ram Lalla. Let's talk to some of the volunteers here, because they have been working hard. They have been working days and nights and putting in several hours of work just to put and place these diyas. तो नमस्ते, कहाँ से आए आप लोग? अकबरपुर। यहीं पे रहने वाले हैं आसपास? यस। तो ये जो दिया है, ये कब से लगाने शुरू किए? जी मैम, ये 3 दिनों से हमारा काम चल रहा है। 3 दिनों से लग रहा है। तो कितना वक्त लगता है इतने 28 लाख दिए जगाने में? इस घाट 28 नंबर घाट पे हमारा इस साल का टारगेट 52,000 था। तो अभी आपको लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा? जी मैम, बिल्कुल। तो कितना टाइम लगा आपको ये सारे दिए लगाने में? क्योंकि कम से कम बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है गिनती करने के लिए। इस बार हम लोग का टारगेट 52,000 का था। सबसे ज्यादा टारगेट 29 नंबर घाट का था, उसका 56,000 था। टोटल हम लोग का 28,50,000 दीपक थे। इस अगले साल से इस साल ज्यादा हुआ है। इस बार हमारे यहाँ का ये अयोध्या का दीपोत्सव इस बार इतना अच्छे से मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रामलला के जब से यहाँ पे स्थापित किया गया है, उसके बाद का पहला दीपोत्सव है जो इतने अच्छे से, और सबसे ज्यादा हम लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि हम लोग यहाँ के निवासी हैं। Celebrations are at all-time high in Ayodhya as Lord Ram has returned to his place, his temple, after awaiting 500 years. Thousands of people, they are walking towards Ram Ki Paidi to witness the grand Deepotsav, which has just now been completed. There were around 25 lakh diyas that were lit in this celebration, and not just one, but 2 world records were created on the banks of Saryu River. People of Ayodhya, they are happy about the celebrations, what has taken place in Ayodhya, and with the change in Ayodhya, the wait for 500 years is now finally over. And there's more in store.
At the Ram Ki Pedi, 500 drones will be deployed in various formations to light up the Ayodhya skyline. The first diya will be lit by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. The scale and magnitude of the event is massive. At Ayodhya Dham, there are around 11 gates carrying different themes of the Ramayana. 4 gates near the Ramkatha Park have been decorated with around 10 quintals of flowers. The festivities of Deepotsav has started in Ayodhya, and we are outside the Ram temple, and as you can see in the visuals how beautifully this entire Ram temple has been decorated. In fact, this is the main gate of Ram temple, and as you can see, a large number of devotees, they have started coming early in the morning. They are queuing up, they are taking their photos outside the Ram temple gate, and this is how beautifully this Ram temple has been decorated for Diwali, and this is the first Diwali after the consecration ceremony, and this time the Uttar Pradesh government has made sure that the people, those who are coming to Ayodhya, they can feel the vibe of that particular Diwali, and this shows that how beautifully Ram Mandir has been decorated. In fact, there is a Shobha Yatra that will commence from Saket, and that will mark the beginning of the festivities of Deepotsav, followed by a Ram Leela, in which Chief Minister Yogi Adityanath will witness that Ram Leela, followed by Saryu Aarti in the evening with the Deepotsav. So you can see a large number of devotees, they have gathered, and it's a special Diwali for the people of Ayodhya, for the people of Uttar Pradesh. In fact, Prime Minister Modi also mentioned this, that this is a special Diwali, as this is the first time that Lord Ram is back to his place after a waiting of 500 years, and he is in his temple. Temple is ready for devotees, and the people of Ayodhya are going to celebrate it with Deepotsav. 500 सालों बाद ये पहला मौका है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान है, और आज अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये बेहद अलौकिक है, और इसीलिए आपको दिखाएं कि जो राम मंदिर है उसको किस तरीके से सजाया संवारा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से ये आपको सीधे राम मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप बकायदा राम मंदिर के मेन गेट देखिए, लिखा है जय श्री राम। ये गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा, चूंकि अभी भी काम चल रहा है। ऊपर के जो दूसरा तल है मंदिर का, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, लिहाजा फर्स्ट फ्लोर जो है जहाँ पे प्रभु श्री राम विराजमान है, वो उसको फूलों से पूरे परिसर को सजाया गया है। करीब 5 टन फूल जो है वो मंगाए गए हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से मंगाए गए हैं, जिससे पूरे इस राम मंदिर परिसर को सजाया गया है। आपको दिखाएं तस्वीरें कैसे भक्त जो है वो भी रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े हैं, और वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज उनके लिए ये अद्भुत क्षण है जब वो प्रभु श्री राम को उनके भव्य राम मंदिर में विराजमान देखेंगे, और शाम को जब पूरा अयोध्या जो है वो दीपों से जगमगाएगा। 2 लाख दिए जो है मंदिर के अंदर भी जलाने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीके के 3 तरह के अलग दिए जो है वो राम मंदिर के लिए मंगाए गए हैं, ताकि जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है मार्बल का, उसमें दाग न लगे, दियों की रोशनी से वो खराब न हो, उसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए विशेष तरीके के दिए मंगाए गए हैं। गाय के गोबर के बने दिए भी जलाए जाएंगे मंदिर परिसर के अंदर। 18 different tableaus depicting the life of Lord Ram will be part of a large procession as well. Amita Vadhva, Adeep Walter and Shweta Srivastava are in Ayodhya for the Deepotsav. So what's the religious significance of the Deepotsav? Here's Amita with more. This Deepavali is all the more
so special because this is going to be the first Diwali of Ram Lalla right after the Pran Pratishtha ceremony or the consecration ceremony that happened in January earlier. And right now you can see, because it's buzzing with activities, so many people, so many tourists, so many bhakts are here. And also joining us here are people here special who have actually completed the last Aarti at the Saryu Ghat, and of course they are awaiting as the Deepotsav you mentioned, because today 5-day festival of Deepavali begins, today being the first day of Dhanteras which is being celebrated. महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी आप बता रहे थे कि आखिरकार और जिस तरह से जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है दिवाली का, वो आज कैसे बढ़ जाता है? सबसे बड़ी बात है कि हम सबके जीवन में पहली रामलला की दिवाली है। 500 वर्षों के बाद कितने दंश हमारे धर्म ने झेला है, सनातन धर्म ने, उस दंश के बाद आज जो है ऐसा अपार खुशी है। आप स्वयं देख सकते हैं अयोध्या आज स्वर्ग बनी हुई है। स्वर्ग शब्द भी छोटी पड़ जाती है आज अयोध्या के, और इस बार तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है। अभी हम लोग 1100 लोगों की एक साथ आरती करके आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। कई लोग सोचते हैं कि राम जी अयोध्या आए रावण पर विजय प्राप्त करके, इसलिए उस खुशी में दीपावली मनाए। बात ये भी सत्य है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि राम जी के पहले दिवाली नहीं मनती थी? ये बड़ा प्रश्न है, इट इज बिग क्वेश्चन, है ना। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि दिवाली हमेशा मनाई जाती थी। एक बहुत सुंदर, तुरंत मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बार लक्ष्मी और नारायण जो इस सृष्टि करता है, पालन करता है, नारायण से सारी सृष्टि चली है, तो आप जानते हैं कि उनकी मैरिज नहीं हुई थी। और एक दिन लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई भगवान पर, बोली कि दुनिया के सारे लोग एनिवर्सरी मनाते, हमारी एनिवर्सरी कभी आती नहीं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि भगवान लक्ष्मी और नारायण नित्य दंपति है जिनका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी हैं दोनों पति पत्नी। तो लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान मनाने के लिए, बोले कि क्या करना होगा, बोले एनिवर्सरी की तैयारी। लक्ष्मी जी रूठ करके समुद्र में चली गई, और जब मंथन हुआ तो मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और प्रकट हुई तो समुद्र को पिता बनाया, और उसके बाद वरमाला के रूप में जो वरण करते हैं, लक्ष्मी जी ने पुनः नारायण को वरण किया, और इसीलिए उस दिन से दीपावली मननी चालू हुई। इसलिए दीपावली में लक्ष्मी पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। और 500 वर्षों के बाद जब ये अयोध्या की मतलब दीपावली ऐसी रामलला का प्रथम दीपावली है, और हम आप जितने आपके दर्शक हैं अपने जीवन में साक्षी रहेंगे, अपने पीढ़ियों तक ये गाथा कहते रहेंगे। So what's the challenge in organizing an event of this scale? इस समय यहाँ लगभग 28 लाख दीप बिछाए गए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 25 लाख दीप जलाएं। 25 लाख 28 लाख 28 लाख जलाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा 25 लाख का जो है, उससे कम ना हो, ज्यादा ही हो। तो पिछले साल कितने दिए लगाए गए? पिछले साल 23 लाख दिए जलाए गए थे। तो इस दफा अब बताइए आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से होने वाला है? मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं यहाँ पर, आरती होगी, एक शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, उसके बारे में भी जरा बताइए। शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से हेलीकॉप्टर के द्वारा भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जो है वह यहाँ लैंड करेंगे, और उसके पश्चात उनकी अगवानी मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, और उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है। और मुख्यमंत्री जी के दीप प्रज्वलन के साथ साथ सरयू माँ की आरती के साथ यह कार्यक्रम शुरू होता है, और भव्य दीपोत्सव होता है। चारों तरफ दीप प्रज्वलित होते हैं, बड़ा भव्य नजारा उस समय होता है, पूरा विश्व साक्षी बनता है आपके माध्यम से। तो यहाँ हम लोग जो है वह राम की पौड़ी पर खड़े हैं। सामने जो है नागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, जो भगवान शिव का है, महाराज लव के द्वारा स्थापित किया गया है। सामने इधर सरयू नदी है, और यह राम की पौड़ी है ही, जिसके विभिन्न घाटों पर आज दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। The Shobha Yatra too is an event to look forward to. दीपोत्सव शाम को है, उससे पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और इस शोभा यात्रा में सबसे पहले दर्शन कीजिए बाल्यकाल के, बाल अवस्था के हमारे श्री राम लला का, जो पालने में सवार है इस वक्त देखिए। और ये बाल्यकाल के जन्म के बाद जो श्री राम की मूर्त है इस पालने पर लगाई गई है माता कौशल्या, और
उनके पिता दशरथ इस वक्त उनके पालने के साथ आगे बढ़े। चलिए मैं आपको फटाफट से इस शोभा यात्रा के और पास ले जाती हूँ। ये शोभा यात्रा अयोध्या के साकेत डिग्री इंटर कॉलेज से निकल करके लता चौक यानी राम की पैड़ी के पास तक जाएगी। और ये देखिए एक के बाद एक जो झांकियां हैं वहाँ देखिए आपको दशानन नजर आ रहे हैं, जिनका युद्ध जिनके साथ यहाँ इस झांकी पर श्री राम के साथ चल रहा है। इसके आगे मैं और बढ़ूं तो ये देखिए बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो सुंदर सुंदर वेशभूषा पहने सर पर कलश रख करके ये आगे बढ़ेंगी। अभी देखिए इनके हाथों में कलश है। जब ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी तो ये सर पर कलश रखेंगी और नृत्य भी करेंगी। और आगे बढ़ते हुए चलिए आपको और झांकियां मैं दिखाऊं। वाकई अगर आप आज अयोध्या नगरी को देखें तो आपको लगेगा कि मानो जब श्री राम त्रेता युग में लंका जीत कर वापस आए थे रामनगरी, वैसी ही खूबसूरत छवि इस वक्त नजर आ रही है। और ये देखिए एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये किष्किंधा कांड है रामायण का। किष्किंधा कांड को यहाँ दर्शाते हुए, रामायण के प्रसंगों को दर्शाते हुए ये जो भव्य झांकी है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा और मैं आपको दिखाऊं, चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाऊं तो ये शोभा यात्रा इतनी सुंदर है और इतनी सुंदर सुंदर झांकियां आज यहाँ दीपोत्सव से पहले लगाई गई हैं। दीनदयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, यानी हमारे संकट को हरो प्रभु श्री राम। और इस वक्त में आपको देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ भी देखिए बजरंगबली आपको नजर आ रहे हैं, जामवंत हैं। और भी आगे आइए तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो कलाकार है वो तैयार हैं और नृत्य करते हुए ये जो कलाकार है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। यहाँ देखिए पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है, क्योंकि जाहिर तौर पर इनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संभालने की। और बहुत ही मुस्तैदी और अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ अयोध्या में ना होने पाए। The Deepotsav in Ayodhya this time is of enormous significance. It's one to remember, it's one to celebrate, and it's one to cherish. Wish you and your family a very happy Diwali. The mega and the grand Deepotsav has now started. Let me quickly take you through the pictures that are now coming in. We are getting you those pictures from Ram Ki Pedi on the banks of the Saryu River, and there you can see all of these volunteers who are now hard at work getting you these pictures of sticks where candles have now been put on them, and through those candles they are lighting those diyas. So it's going to be in a matter of minutes when this entire area would be illuminated with lights. Lights that are lit from the earthen lamps, light that are lit from the lasers. There are drone cameras in place, and in a short while from now, a world record would be created. 28 lakh diyas, that is said to be the estimated number. That world record, this Deepotsav, even more special right after this Deepavali that will be celebrated tomorrow on the grand homecoming of Ram Lalla. So there you can see, in a matter of minutes, we are looking at lakhs and lakhs of diyas that are now being lit. These pictures that are coming to you from the banks of the river Saryu at Ram Ki Pedi in Ayodhya. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की